Today we will start the new chapter, that is chapter 5, Principles of Inheritance and Variation. So first of all, we will discuss these two terms, inheritance and variation, because these are the new terms for you. What is the meaning of inheritance? When we acquire the characteristics of the parents, when any child or offspring acquire the characters of parents, that we called it is a heredity, or it is a phenomenon of inheritance, right? And what is a variation? Variation means when sometime we do not have the same characteristics as the parents have, right? We have the different characteristics from the parents, means that is a variation in the characters, the difference in the characteristics. That difference in the characteristics is called variation. और जो साइंस इन सबको स्टडी करती है कि क्या रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए या हेरिडिटी के लिए और वेरिएशन के लिए, उस साइंस को, that branch of biology is called genetics, right? As in the plus one, we have studied that gene is the factor present in the chromosome, that is present on the chromosome, that is responsible for the inheritance. Here we will study basically what is the main purpose of inheritance, how does it occur, right? So branch of biology dealing with the inheritance and variations of the character from parents of offspring is called genetics. Offspring means children. So inheritance, what does it mean? As I told you, the process by which characters are passed on from parent to progeny, means from parent to children, parent to offspring, is called inheritance. Then what is variation? So variation is a difference. The degree by which the progeny means children, degree by which the progeny, the next generation, differ from its parents is called variation. So we will start with the very important topic, the very important person in the field of genetics, and he is called the he is called as a father of genetics. So that is the Gregor Johann Mendel. Gregor Mendel was a very important person in the field of genetics. He laid the foundation of genetics. इसने ही, इसके दिमाग की उपज है जेनेटिक्स, आप ये समझ लो. इसने हमें फाउंडेशन दे दी जिसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च हुई है आगे जाके, ताकि जो जेनेटिक्स इतना वास्ट फील्ड बना. दिस मैंडल पहले सिर्फ लोग डिस्कस करते थे, लोगों को नहीं पता था कि क्या कारण है कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ मैच हो रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ डिफरेंस भी है, क्या है इसके पीछे, क्या सीक्रेट है, क्या मिस्ट्री है, किसी को नहीं पता था जब तक मैंडल ने कुछ एक्सपेरिमेंट ना करे. ये मैंडल ही था जिसने सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हमें बता दिया कि क्या है इसके पीछे साइंस. और जब तक बंदा जिंदा होता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है. तो क्या होता है, जब तक मैंडल जिंदा रहा, किसी ने नहीं उसकी जो साइंस उसने जो करा उसको पूछा किसी ने. आफ्टर हिज डेथ साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज करा कि जो मैंडल ने बात करी थी वो सच थी, बिल्कुल ठीक थी जो उसके एक्सपेरिमेंट थे. तो आज हम करेंगे कि मैंडल एक्सपेरिमेंट कैसे करे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि मैंडल ने कैसे शुरू करा. मैंडल ने बेटा काम करा पी प्लांट पे, मटर के पौधों पे काम करा उसने. एंड आई फील कि सबने मटर के पौधे देखे हैं अपने खेतों में, घरों के आसपास देखे होंगे. अगर नहीं देखे तो आज जाके प्लीज देख लेना कि मैंडल ने जो जो जीन्स के बारे में, जेनेटिक्स के बारे में बताया, वो उसने पी प्लांट पे ही रिसर्च करी थी.
सो मैंडल जो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर मैंडल, उसका फुल नेम था ग्रेगर जॉन मैंडल, JOHN, जॉन. He was born in 1822 in Austria, not Australia, Austria. Austria is a city, Austria is a country in the Europe. यूरोप की एक कंट्री है ऑस्ट्रिया. तो ऑस्ट्रिया में ये पीजेंट, ये फार्मर के घर पैदा हुआ है. ठीक ठाक सी फैमिली थी. तो उसके पेरेंट्स क्या थे, फार्मर्स थे. लाइक तो वो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे. सो ही डिड वेल इन द स्कूल एंड बिकम मॉन्क. उस टाइम क्या होता था, बच्चे पढ़ने के बाद जो कई बार पेरेंट्स उनको क्या करते थे, रिलीजियस एजुकेशन में डाल देते थे. तो ऐसा ही क्या हुआ, मैंडल के साथ हुआ. स्कूल में पढ़ने में अच्छा था, तो वो उसके बाद उसको प्रीस्ट बन गया. उस टाइम वहां पे ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रियन चर्च में जाके वो क्या बन गया बेटा, वो मॉन्क बन गया, प्रीस्ट बन गया, पादरी बन गया. फिर यूनिवर्सिटी भी गया वियना. वियना क्या है बेटा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना. तो वहां पे उसने साइंस और मैथ भी पढ़ा. अब मैंडल शुरू से ही, ये मैंडल की आप पिक्चर भी देख सकते हैं, वेरी वेरी फेमस पर्सन ग्रेगर मैंडल. तो मैंडल शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट रखता था साइंस पढ़ने में थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. तो उसके प्रोफेसर्स ने उनको इनकरेज करा एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, ताकि वो आगे जाके इसको परस्यू करें. तो मैंडल को पाइसम सेटिवम बेटा ये नाम है पी प्लांट का. मटर के प्लांट, उसके मटर के प्लांट को हम कहेंगे, साइंटिफिक नेम है इसका पाइसम सेटिवम. ये बोलना नहीं है आपने, साथ साथ अपनी कॉपीज पे लिखते जाओ. पी प्लांट को कहते हैं पाइसम सेटिवम. ये है ग्रेगर मेंडल. तो ग्रेगर मेंडल ने क्या करा बेटा, वो ऑस्ट्रिया में मॉन्क थे, वो प्रीस्ट थे, ठीक है. तो उन्होंने पी प्लांट पे काफी एक्सपेरिमेंट्स करे. तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कहाँ करे, वो जो मॉन्स्ट्री में रहते थे, जिस जिस चर्च में वो रहते थे आसपास में, वहां पे बहुत मटर के प्लांट्स थे. तो वहां पे ही उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स करे. People have long people have long known that the characteristics of living things are similar in the parents and their offspring. लोगों को ये तो पता था कि जो पेरेंट्स के साथ मैच होते हैं बच्चों के कैरेक्टरिस्टिक्स, पर कैसे होते हैं ये नहीं पता था. जैसे प्लांट्स में भी ऐसे होता है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट्स अगर पैदा हो रहा है उसके बीज से, तो पहले प्लांट की तरह ही वो होएगा, पर क्यों होता है ये नहीं पता था हमें. जब तक मेंडल ने कोई ना कोई रिसर्च करके हमें नहीं बताया, ग्रेगर मेंडल ने ही हमें बताया, उससे पहले हमें ये बेटा नहीं पता था. मेंडल डिस्कवरीज फॉर्म द बेसिस ऑफ जेनेटिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, द साइंस ऑफ हेरिडिटी. इसलिए मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स. It's not common for single researcher to have such an important impact on science. देखो एक इतना जो रिसर्चर है मेंडल का आज भी नाम लिया जाता है जेनेटिक्स में, उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई है. तो बेटा इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतनी उसकी जो उसका काम किया हुआ था, उसको पूरी दुनिया में रिकॉग्निशन मिली है. तो कैसे मिल गई इतनी रिकॉग्निशन, सोए सोए तो नहीं मिल सकती ना. हम कहें हम सो रहे हैं अपने आप काम हो, ऐसा तो नहीं है ना. उसके लिए क्या चाहिए, क्यूरियस माइंड. ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको आपके अंदर एक जिज्ञासा, क्यूरोसिटी. साउंड साइंटिफिक मेथड, साइंस अच्छी तरह आनी चाहिए. एंड ऑब्वियसली लक भी देखो साथ देगा ही देगा. जो बच्चा मेहनत करेगा, जो आदमी मेहनत करेगा, उसका लक उसके साथ हमेशा ही होगा. ऐसा ही मेंडल के साथ हुआ. अब हमने ये बेटा यहाँ पे पढ़ना है, वाई मेंडल स्टार्टेड पी प्लांट्स. उसने पी प्लांट्स ही क्यों पढ़े, क्यों देखे, राइट. द ग्रेगर जॉहन मेंडल, इसका पूरा नाम है, नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इसने हमें कुछ लॉज दिए थे, राइट. वो हम आगे पढ़ेंगे. और इसने ही यूज्ड गार्डन पी एज हिज सैंपल. Larger sampling size gave credibility to his collected data. उसके बाद बहुत पी प्लांट्स थे, थाउजेंड्स में थे. इतने ज्यादा पी प्लांट्स थे, ये नहीं कि उसने एक प्लांट ले लिया उसमें रिसर्च करके बता दिया. जितनी हम ज्यादा सैंपलिंग होगी, जितने हमारे पास ज्यादा बड़ा सैंपल होगा,
उतनी हमारी रिसर्च की क्रेडिबिलिटी, उसकी वैल्यू, उसकी सच्चाई या कह दो, वो बढ़ जाती है उसकी, राइट। तो उसने कितने प्लांट्स पे करा, सेम रिजल्ट्स आए उसके। तो गार्डन पी प्लांट्स पोजेस सर्टेन कंप्लीटली ऑपोजिट ट्रेट। उसने ये देखा जो पी प्लांट है, जो मटर के पौधे हैं, उनमें जो ट्रेड्स है ऑपोजिट। कैसे? कुछ टॉल होंगे तो कुछ डवार्फ, डवार्फ मतलब बौने, छोटे छोटे पौधे, कुछ लंबे हैं तो कुछ छोटे हैं। तो उसने इस तरह से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करे बेटा, 7 मेन उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ली पी प्लांट की। अभी सोचने वाली बात है, उसने सिर्फ पी प्लांट्स को ही क्यों लिया, राइट? उसने पी प्लांट्स को इसलिए लिया बेटा बिकॉज दे आर वेरी फास्ट ग्रोइंग एंड इजी टू रेस। जल्दी प्रोडक्शन हो जाती है और जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं, तो इसलिए उनको लिया ताकि इजिली पता लग जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसी बन रही है, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे दिखते हैं। तो उसने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए बेटा, क्या क्या लिए ये हम पढ़ेंगे। मैं आपको चार्ट ही दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगी। ये देखिए, उसने क्या क्या लिया। उसने सबसे पहले 2 कैरेक्टर्स लिए सीड के। नंबर 1 लिखिए, फॉर्म, शेप। सीड की शेप कैसी है, ये आप कॉपीज पे चाहे लिखते जाइए, क्योंकि हम लोग को लर्न करने हैं 7 के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। राउंड है या रिंकल्ड है? अगर राउंड है तो वो डोमिनेंट है, रिंकल्ड है तो रिसेसिव है। ये हम आगे बात करेंगे क्या मतलब होता है इसका, इसका डोमिनेंट और रिसेसिव का। आगे बात करी कॉटिलिडियन की। कॉटिलिडियन जब उन्होंने, हम देखते हैं ना, कॉटिलिडियन आपको पढ़ाया हुआ है ना बेटा, डाइकोटिलिडियन और मोनोकोटिलिडियन, राइट। सो अगर येलो कॉटिलिडियन है तो वो ले लिया, और दूसरा ग्रीन ले लिया, 2 फैक्टर ले लिया। तीसरा लिया कलर, फ्लावर का कलर कैसा है, व्हाइट है या पर्पल है। पॉड, जो मटर है, जो मटर का पूरा वो मटर का क्या पॉड है, एक मटर की जो फली है उसकी फॉर्म कैसी है, वो फुल है, प्रॉपर बने हुए है, या थोड़ी सिकुड़ी हुई है, कंस्ट्रक्टेड है। कलर उसका क्या, कौन सा है, ग्रीन है या येलो है, ये देखा उसने। और फिर उसने ये देखा जो मटर के जो फलियां बन लग रही हैं, मटर मटर लग रहे हैं, वो कहाँ लग रहे हैं, वो किसी भी ऐसे इस पे जो टाली पे लग रहे हैं, वो एक्सिल पोजीशन, आपको एक्सिल और टर्मिनल पोजीशन करवाई हुई है ना बेटा +1 में। एक्सिल मतलब साइड पे लग रही है, टर्मिनल मतलब टॉप पे लग रही है, ये देखा। साइज देख लिया, टॉल है स्टेम या शॉर्ट है। इस तरह से बेटा फॉर्म सीड की, कॉटिलिडियन, कलर फ्लावर का 3, चौथा जो मटर है वो फली मटर की, कलर, प्लेस और साइज। इस तरह से उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए मटर के प्लांट के। ये 7 के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है बेटा, ये आपको आने चाहिए, राइट। अब मेंडल ने क्या करा बेटा, मेंडल इन्वेस्टिगेटेड 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पी प्लांट। इन दिस चार्ट cotyledons refer to the tiny leaves inside the seeds। तो आपको पता ही है, axial pores located along the stem terminal at the end, ये हमने करेंगे है। अब वही जो बात मैं आपको बता रही थी, अभी आप देख लीजिए बेटा, इसमें इस पिक्चर को ध्यान से देखिए दोबारा फिर। जो तो ऊपर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, ये डोमिनेंट है। नीचे वाले क्या है, रिसेसिव। ये आप समझो ध्यान से क्या मीनिंग है। डोमिनेंट का मतलब है जो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी उसमें किसी ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट है, चाहे एनिमल है, चाहे इंसान है, जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है, वो डोमिनेंट है। अब देखिए, मान लीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी की हाइट है, जिसमें अगर अपनी बात करूँ, मेरी हाइट है 5 फीट 1.5 इंच है मेरी, है ना, इतनी हाइट है मेरी। मेरे फादर की हाइट थी 5'11", मेरे मदर की हाइट थी मेरी जितनी। अब मेरी हाइट किस पे चलेगी, मदर पे चलेगी, राइट।
ये चीज आप ये दिमाग में डाल लो, जो भी हमारे ट्रेट हैं, चाहे हाइट है, चाहे कंप्लेक्शन है, चाहे कुछ भी है, हर ट्रेट को दो तरह के जीन्स कह दो कि दो जीन्स उसको गवर्न करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, राइट। मेरे अंदर हो सकता है लंबी हाइट वाला भी जीन हो, पर शो कौन सा हो रहा है, शॉर्ट हाइट वाला। जो जीन्स ने अपना करेक्टर शो कर गया मेरे को, किसी भी ऑर्गेनिज्म में करेक्टर शो कर गया, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, डोमिनेंट। जिसने नहीं शो करा वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव। अब मान लो सीड मटर का राउंड है, इसका मतलब वो राउंड शो हो रहा है, हो सकता है रिंकल वाला भी उसके अंदर ही छुपा हुआ है जीन, पर वो बाहर नहीं आया, वो दबा हुआ है। जो बाहर आ गया वो क्या होएगा बेटा, डोमिनेंट करेक्टर। जो अंदर ही रह गया दबा हुआ है वो क्या होगा, रिसेसिव करेक्टर। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझ लो। अब हम इसमें बात करते हैं पी प्लांट में। जो डोमिनेंट करेक्टर स्टेम हाइट का, वो टॉल वाला करेक्टर क्या होएगा, डोमिनेंट। रिसेसिव कौन सा है, डिवार्फ, मतलब बोना प्लांट। जो बोना होएगा इट मीन वो रिसेसिव है उसका वो वाला करेक्टर। अगर टॉल और रिसेसिव दोनों है तो टॉल ही शो होएंगे उसमें, तो टॉल क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। अब फ्लावर कलर की बात कर लेते हैं। फ्लावर कलर वायलेट वाला है तो वो डोमिनेंट वाला है। अगर व्हाइट कोई शो कर रहा है इट मीन रिसेसिव करेक्टर शो हो गया। फ्लावर पोजिशन एक्सल वाली डोमिनेंट है, टर्मिनल वाली रिसेसिव। देखो अगर कोई मान लो फ्लावर कलर व्हाइट आ गया, आप कहोगे व्हाइट आ गया, इट मीन उसमें रिसेसिव करेक्टर शो हो रहा है, डोमिनेंट वाला शो ही नहीं हो रहा, राइट। अब फ्लावर पोजिशन भी एक्सल वाली डोमिनेंट है और टर्मिनल क्या है, रिसेसिव। पॉड शेप इन्फ्लेक्टेड है, जो नॉर्मल है वो डोमिनेंट है। कंस्ट्रिक्टर सिकुड़ा हुआ जो मटर है वो क्या होएगा, रिसेसिव। पॉट का कलर ग्रीन वाला क्या होएगा बेटा, डोमिनेंट है। मटर का जो कलर है छिलके का बाहर का, और येलो वाला है वो रिसेसिव। सीड की शेप भी ऐसे ही है, जो राउंड वाली है वो डोमिनेंट है, जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव। सीड कलर उल्टा होएगा, येलो वाला डोमिनेंट है, ग्रीन वाला रिसेसिव। अब हम ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स वर ऑब्टेन्ड बाय कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करते जाएं, राइट, मैं आपको वो आगे कराती हूँ फिर आपको समझ आएगा। आप काइंडली कॉपी और पेन अपना ले लो। अब देखिए, पहले मैं आपको क्रॉस कराऊंगी फिर समझ आ जाएगा आपको, फिर मैं पढ़ाऊंगी ऊपर से। प्लीज कॉपी पेन ले लो, इसके बिना आपको नहीं समझ आएगा। सारे बच्चे प्लीज जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ऐसे आप अपनी कॉपी पे लिखते जाओ। मान लो हमने एक कैरेक्टर ले लिया, हाइट ऑफ द प्लांट, राइट। हाइट ऑफ द प्लांट है यहाँ पे। अब मैंने हाइट ऑफ प्लांट ले लिया कैरेक्टर, इसमें जो पेरेंट है, मान लो जो मैंने एक पौधा ले लिया लंबे वाला, बड़े वाला, टॉल वाला। दूसरा पौधा ले लिया मैंने डवार्फ वाला, ठीक है। कहने का मतलब है एक जो मेल हो गया ये फीमेल हो गया। इसके क्या हो गए बेटा, पोलन ग्रेन्स ले लिए, इसका स्टिग्मा ओवरी इसकी यूज कर लिया वो सारे। तो ये टॉल हो गया, डवार्फ हो गया। जब मैंने F1 जनरेशन देखी तो क्या हो गया, तो सारे मेरे पास टॉल पौधे आए, शॉर्ट वाला कोई भी नहीं आया, ठीक है। जो नए पौधे बने वो टॉल ही बने सारा। इट मीन्स कहाँ गए ये वाला कैरेक्टर, कहाँ गया, ये स्मॉल टी कहाँ गई, स्मॉल टी है पर शो कौन सा हो रहा है, टॉल वाला, क्योंकि टॉल वाला क्या है, डोमिनेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये छोटे वाला कब शो होएगा, जब दोनों ही जीन्स क्या होंगी, स्मॉल टी तो ही छोटा शो हो रहा है ना। पर टॉल हाइट शो हो जाती है अगर स्मॉल टी है और एक बड़ी टी है, फिर भी टॉल हो जाएगा वो, राइट। कहने का मतलब है डोमिनेंट करेक्टर अगर शो करना है किसी भी में, तो हमें एक जीन के साथ ही चल जाता है काम, दो फैक्टर नहीं चाहिए हमें। पर अगर हमने डवार्फ वाला का शो करना है तो दो चाहिए उसमें, स्मॉल टी, राइट। अब हमने सेल्फिंग कर दी, ये जो सेकंड जनरेशन में प्लांट आए थे उनको आपस में क्रॉस कर दिया। तो जो F2 जनरेशन आई है उसमें क्या आगे बेटा, एक टॉल आया, इसकी टी साथ मैच होगी, टी टी आ गई। अब बड़ी टी
छोटी टी के साथ, फिर टॉल आ गया ये टी इस टी के साथ, फिर टॉल आ गया ये, और ये स्मॉल टी के साथ, फिर क्या आ गया ये डवार्फ आ गया। तो F2 जनरेशन में हमें क्या रेशो मिली है बेटा, ध्यान से देखिए, 1:2:1। एक टॉल है, प्योर टॉल है, दो हाइब्रिड टॉल है, उसमें अंदर स्मॉल टी भी है, एक प्योर क्या है डवार्फ, ये मिल रहा है ना बेटा हमें। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम इस क्रॉस को स्टडी करते हैं। बड़ी टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी आर द जीनोटाइप्स। जीनोटाइप्स है ना, ये जीन शो हो रही है, ये तो जीन से बन गया जीनोटाइप। अब जो हमें कैरेक्टर शो हो रहा है जीन से, उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप। while the traits tall and dwarf are the phenotypes. T stands for the tall trait and small t for the dwarf. Dwarf मतलब बौना छोटा. Even if the single T is present in the genotype, phenotype is tall. अभी मैंने आपको बताया, अगर T single भी present है बड़ी, तो वो क्या होएगा, tall. When T and T are present together, then T dominates, बड़ी so capital T will dominate and suppress the expression of small t. ठीक है, उसको suppress कर लेगी, तो plant क्या हो जाएगा, T. Therefore, T for tallness is the dominant trait, while small t for dwarfness is a recessive trait. Capital T and small t are the homozygous, while capital T small t is the heterozygous. Hetero मतलब different different. दो तरह के जीन आ गए ना इसमें. So from the cross, it can be found that alleles of parental pair separates or segregate from each other, and only one allele is transmitted to the gamete. अब ये कैसे हुआ, ये आपको बताती हूँ। अब आप फिर काइंडली आप क्या ले लो बेटा, पेंसिल ले लो। अब हमने क्या करा था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये था ना स्टार्टिंग में हमारे पास। अब हम इसके गैमेट्स बना लो। अब इसमें दो जीन्स हैं, दो गैमेट्स बन गए, टी टी। जब आप हमने पढ़ा है मियोसिस में पढ़ा है बेटा, अलग अलग होंगे क्रोमोसोम, चलो उस डिटेल में ना आ जाओ, अभी आप इस यहीं पे आ जाओ। टी टी स्मॉल टी। अब ये टी इस टी के साथ मिल गई, यहाँ पे हमने इसको कहते हैं पुनेट स्क्वायर, ये बना लिया स्क्वायर। इसके ऊपर लिख लिया कैपिटल टी, ये वाली लिख लिया आपने, स्मॉल टी इस साइड पे लिख ली। अब इसको जोड़ दो, ये टी के साथ ये टी मिल गई, टी टी, ये टी मिल गई कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें F1 जनरेशन मिल गई। सारे क्या मिले, हाइब्रिड मिले, मतलब क्या मिले, हेटेरोजाइगस। अब इनको सेल्फिंग करते हैं, फिर हमने स्क्वायर बना लिया। अब इसमें क्या लिखेंगे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि एक ये लिए एक ये लिए। तो अगर जब इसको करा, दोनों टी टी आ गए, ये टी टी आ गए, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी। सो इसका मतलब ये टॉल होएगा, ये भी टॉल होएगा, ये भी टॉल, ये डवार्फ होएगा प्लांट, राइट। सो हम पनिट स्क्वायर की हेल्प से ये सारी हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए आप, ये क्या बन गए, वन, ये तो सेम है ना सारे, ये क्या बन गए, 1:2:1। ये करा था ना ऊपर भी हमने सेम, ये वाला सेम है ना। ये हमने क्या करा बेटा, क्रॉस करा है। अब इस क्रॉस को समझने के लिए फिर हमने ये पनेट स्क्वायर ड्रॉ करा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही ड्रॉ करके आपने देखना है, राइट। तो चलते हैं। सो जब हम क्या करते हैं बेटा, अभी जो हमने क्रॉस करा था उसी के बारे में बताया हुआ है। सो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल प्रपोज दैट समथिंग इज बीइंग पास अनचेंज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड फैक्टर। तब उसको जीन के बारे में नहीं पता, तो उसने नाम दिया फैक्टर्स का। कुछ ऐसी चीज है जो पास हो रही है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको कहते हैं फैक्टर्स, राइट। फैक्टर्स कंटेन एंड कैरी ऑल द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जो पेरेंट्स से बच्चों को मिलती है वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होएगी, फैक्टर्स में, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। अलील्स क्या है, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ सेम फैक्टर। एक फैक्टर की एक से ज्यादा जीन की दो तरह की
कॉपीज होती है, एलील्स क्या बहनें हैं, राइट, एक तरह की। तो जैसे हमने कहा टॉल है बंदा, तो उसमें हो सकता है रिसेसिव जीन भी हो, दूसरी बहन भी हो, पर सामने कौन सी आएगी, अगर टॉलनेस वाली है तो वही सामने आएगी, छोटी को टी को बाहर वो नहीं आने देगी। स्मॉल टी तभी बाहर आएगी अगर दोनों मिलके ही वो कुछ कर सकती हैं, स्मॉल टी, दो स्मॉल टी। So two alleles code for a pair of two contrasting traits, tall और dwarf. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सा है, जब हम सिंगल कैरेक्टर ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक ही कैरेक्टर लिया ना, कौन सा लिया एक कैरेक्टर हमने यहाँ पे, यस हमने लिया हाइट ऑफ द प्लांट। तो बेटा आपने ये क्रॉस भी ड्रॉ करना है। इस क्रॉस के साथ ही, ये क्रॉस के बारे में लिखने के बाद आपने ये वाला पनिट स्क्वायर ड्रॉ करके नोट्स में मेरे को अभी भेजना है, ठीक है। तो आज हमने बेटा क्या क्या करा, इस चैप्टर में हमने, इस सेक्शन में हमने शुरू करा है जेनेटिक्स क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, वेरिएशंस क्या होती हैं, मेंडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हमने, उसने पी प्लांट पे क्यों काम करा, और पी प्लांट्स पे उसने कौन कौन से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे पी प्लांट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने लर्न करने हैं, 7 के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स पी प्लांट के, उसमें डोमिनेंट कौन से हैं, रिसेसिव कौन से हैं। फिर हमने आज करा मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर लेके हमें क्रॉस बनाना सीखा है। जी आपने अभी क्रॉस बना लो अपनी कॉपीज पे। ये क्रॉस बनाने के बाद ये वाला क्रॉस बनाओ, क्रॉस के साथ ही नीचे ही आपने बनाना है ये वाला पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर बना के आपने मेरे को नोट सेंड करने, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये नोट्स बना के दोनों मेरे को सेंड कर दो। थैंक यू बेटा।